Welcome back to yet another daily analysis on Market Pulse with Aditya and Nikita. And what a day today! We actually witnessed record highs on all indices. Throughout our analysis, we have been maintaining our stance of buying the dips, especially for people who were having portfolios and having SIPs across our all multi-time frame analysis. We have said it that they need to continue that without doing any hedging or any sort of thing because the downside risk was not very much, and with God's grace our view proved to be right. Today Nifty closed at record highs of 23,263, Bank Nifty almost 51 over 51,000. Of course the adjusted closing is below that. This is the weekly chart and I have adjusted this particular chart a bit. Originally I had drawn this particular rectangle on the daily time frame, however it was not fitting there and there was this some sort of a down move, but when I saw the same rectangle on the weekly time frame it made much more sense. Why? Because this was the breakout candle and this was the retest kind of a candle, and immediately we saw an up move with the, of course, with a very huge gap. So everyone knew that due to elections, because there was an event, of course the opening would be definitely with the gap. We saw a huge gap up opening and it favored all the bulls. And if you have benefited with our analysis in any which ways, so please do hit the like button and also do comment like how our analysis helped you. Okay, so now this is what the adjusted rectangle looks like on the weekly time frame, and the first target of this particular adjusted rectangle has been achieved today itself. The second one is around 23,686. I can say it's roughly around 23,700. Don't worry, this is not the last target. We have still more targets coming. This is the final target of pole and flag on the monthly time frame, which is almost 24,860. Let's see when it happens, but overall this is what the targets looks like. Right now we will just focus on the 15-minute or what needs to be done tomorrow. So on the daily time frame you will see this is the huge gap that has been left right now. On the 15-minute time frame, what we can clearly see, I have not mentioned any sort of a support or resistance on this particular chart, although this is a support of 23,200. However, I'm not marking it. The reason being because today look at this particular volatility. So we are definitely going to see huge momentum on both sides even tomorrow. That's what my guess is. See, whenever there is huge volatility, especially because of an event, and tomorrow it would be due to continuously counting of the numbers and all of those things, definitely this kind of a sharp up move and down move would be expected. So that's the reason I'm not marking any levels. If you will see, this was basically 276 or roughly 300 points move after a huge gap up. Okay, so that's the reason I'm not marking, although otherwise it would have been a support of 23,200 and so on and so forth. But as you see, this particular wick after 23,200 it will obviously go even more down and then come back, and that too the frequency is not just 10-20 points of the down move, it is more than 50 points. We do not have any known resistances. It is totally blue sky zone. Considering the round numbers, it could be around 23,500, 23,520 zones, and the next would be around 23,600. Of course this is the target of that particular rectangle, तो वी माइट सी सम सॉर्ट ऑफ अ प्रॉफिट बुकिंग अराउंड दिस लेवल्स. देन हिंदी ऑडियंस के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं कोई सपोर्ट्स ड्रॉ नहीं कर रही हूँ. द रीजन बीइंग क्योंकि इतनी बड़ी गैप अप खुलने के बावजूद ये जो 300 पॉइंट की जो मूवमेंट है ये काफी वॉलेटाइल रही है. तो इस रीजन से क्या होता है, मान लीजिए मैंने ये सपोर्ट मान भी लिया है इसको 23,200, बट ये वाली जो विक देख रहे हो आप, ये 23,200 से कितनी नीचे गई है, ये 160 तक गई है और फिर वहां से उसने रिवर्स ली है. सो इट इज़ नॉट जस्ट 10-20 पॉइंट्स की बात करें, हम काफ़ी 50 पॉइंट्स वगैरह नीचे आता है. तो उस रीज़न से मैं आपको यहाँ पर कोई इंट्राडे में ये वाला कोई सपोर्ट सीध नहीं दे रही हूँ. सीधा सपोर्ट यहाँ पर ही समझ लीजिएगा आप. 20 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और 23,060 से 23,110 बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है. और उसके बाद द वेरी नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इज दिस वन. ठीक है, ये वाली द वेरी नेक्स्ट सपोर्ट इज दिस वन. S2 बहुत ही एक और बहुत ही बढ़िया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है. वी डू नॉट हैव, हमारे पास कोई रेजिस्टेंसेस नहीं है. 23,500 एक राउंड नंबर है, वहां पर 23,500 23,600 के आसपास हम देख सकते हैं. फिर सॉरी 23,500 से 23,600 के आसपास हम कुछ देख सकते हैं. फिर शायद वहां पर मार्केट जाके रुके या कुछ करे. तो आइडिया क्या है, आज भी अगर आप देखोगे, आज आपके पास अपॉर्चुनिटी कहा थी, ओपनिंग होते ही वो सेल ऑफ में कन्वर्ट हो गई. बिकॉज जिन लोगों ने भी ओवरनाइट बाय किया है उनको तो बहुत अच्छी प्रॉफिट हुई है ओपनिंग पे इतनी बड़ी गैप पे. और देखिएगा कहाँ पर उसने सपोर्ट लिया, जहां से इसने पहले एक नया ऑल टाइम हाई बनाया था, बिल्कुल वहां से उसने सपोर्ट लिया और रिवर्स होके गया. तो आपको अगर कल ऐसे अपॉर्चुनिटी मिलती है बाय ऑन डिप्स वाली, तो आप उसको छोड़िएगा नहीं. मान लीजिएगा फॉर वॉट एवर रीजंस अगर नीचे आती है यहाँ पर 200 150 के आसपास और यहाँ से रिवर्सल दिखाती है, तब आप लॉन्ग जा सकते हो. यहाँ पर आइडिया है बाय ऑन डिप्स करने के लिए.
दोनों दिन, दो आपके मतलब कल के लिए। और आज क्या हुआ है, आज इंडिया विक्स में अगर आप देखोगे तो थोड़ा फॉल आ गया है, बट बहुत ज्यादा फॉल नहीं आया है। इनफैक्ट कॉल्स में बहुत ज्यादा स्पाइक आई थी टुवर्ड्स द एंड, ऑल्सो बिकॉज ऑफ द मोमेंट एंड बिकॉज ऑफ द विक्स का राइजिंग ऑफ द विक्स, बिकॉज विक्स एक पॉइंट पे तो आई गेस 19 तक भी गई थी, और फिर 19 से ये ऑलमोस्ट 21 आ चुकी है आज ही। नाउ लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में ये है कि फाइनली ये जो चैनल जो कितने बार से जो टेस्टेड था, ये उसके फाइनली ऊपर निकल गया। हालांकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि राइजिंग चैनल का ब्रेक डाउन्स आर यूजुअली पावरफुल, हाउएवर वी हैव सीन की क्यों वी वर बुलिश। तो आप अगर आपने वो पर्टिकुलर वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं यहाँ पर आई बटन लगा दूंगी, आप वहां पर जाके देखिएगा वो पूरी एनालिसिस। तो फाइनली ये पर्टिकुलर 50,000 के ऊपर बैंक निफ्टी आराम से पार हो चुकी है, और वो सस्टेन भी करो। और कितनी प्यारी पैटर्न है, डब्ल्यू का ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट दिया, और ऐसा गया है ये पर्टिकुलर पैटर्न, बहुत ही अच्छा पैटर्न के साथ गया है बैंक निफ्टी भी। बैंक निफ्टी में 15 मिनट्स में चलते हैं, तो ऑन 15 मिनट्स में अगर आप देखते हो तो ये बहुत ही अच्छी सपोर्ट है अभी 49,945 50,100 के आसपास की। दूसरी वाली ये सपोर्ट है बहुत ही अच्छी ऊपर में। हालांकि मैं मतलब कल तो ये ब्रेक करने की गुंजाइश थोड़ी सी कम है। ऊपर की तरफ हम कहाँ देख सकते, क्योंकि हमारे पास कोई नोन रेजिस्टेंसेस है नहीं, तो ऊपर में अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम 50, मतलब मैं बहुत ही ओवर ऑप्टिमिस्टिक लेकर भी देख रही हूँ, तो अभी भी मुझे 52 के ऊपर बहुत ज्यादा दिख नहीं रहा है अभी के लिए। अब देखते हैं कि कल कितने गैप अप से ओपन होते हैं, बिकॉज हम लोग डे हाई पे क्लोज हुए, तो ऑब्वियसली थोड़ा गैप अप ओपनिंग एक्सपेक्टेड है कल के लिए भी। बट फिर कल भी एक्सपेक्टेशंस यही है कि जैसे आज वॉलेटाइल रही है, कल भी मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मार्केट थोड़ा बहुत तो वॉलेटाइल ही रहेगा, बिकॉज कल इवेंट है जो कि इलेक्शन वाली है। आइडिया यहाँ पर भी यही रहेगा कि बाय ऑन डिप्स कर सकते हो। हाँ, बट एक वन मोर थिंग फॉर ऑप्शन सेलर्स, आई वुड से कल आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कॉल्स भी सेल करने के लिए, बिकॉज याद रखिएगा दोनों कॉल और पुट के प्रीमियम्स बहुत ज्यादा है, बहुत ही इन्फ्लेटेड है अभी भी, डिस्पाइट इंडिया विक्स में थोड़ा सा फॉल आने के बावजूद। स्पेशली अगर आप कॉल्स में देखोगे तो कॉल्स तो फट चुके हैं, कॉल्स सारे बहुत ही हाई रेट पे ही है टुवर्ड्स द एंड, तो आपको स्ट्रैंगल मारने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और स्ट्रैंगल मारने की रीजन सिर्फ ये नहीं है कि आपके पास कॉल्स इन्फ्लेटेड है, द रीजन इज ऑल्सो बिकॉज देखिएगा बैंक निफ्टी 2000 पॉइंट्स ऊपर आई है, और मान लीजिएगा कि कल और भी ऊपर जाती है, मान लीजिएगा कल यहाँ से भी और 1000 पॉइंट अगर ऊपर भी जाती है, तब भी आप लोगों के पास 1000-2000 पॉइंट भी अगर ऊपर जाती है यहाँ से सेम आज के जैसे ही, फिर भी प्रीमियम्स बहुत अच्छे रहेंगे आपके लिए। और आपको सिर्फ एक और दिन ही है ना एक्सपायरी के लिए, तो आप फिर उस दिन के लिए फिर आप साइडवेज के लिए प्ले कर सकते हो, बिकॉज दोनों साइड में बहुत अच्छे प्रीमियम्स है, तो उस रीजन से बोल रही हूँ। अदरवाइज अगर आप डायरेक्शनल प्लेयर हो तो सिंपल है, जस्ट वेट फॉर बाय ऑन द डिप्स, जैसे यहाँ पर भी हुआ है, एक डब्ल्यू का ब्रेकआउट होके मार्केट ऊपर जा चुका आज भी। सो अदरवाइज मैं प्रेफर करूंगी कि बाय ऑन डिप्स करने के लिए, बट क्योंकि देर इज ओनली वन डे टू एक्सपायरी, फॉर ऑप्शन सेलर्स आई वुड सजेस्ट यू कैन एक्चुअली लुक फॉर फार ओटीएम स्ट्रैंगल, because the premiums are really good. And as I said, the reason for selling strangle is not just because the premiums are really good, the reason is because we are already 2000 point up today, and let's say tomorrow also, for whatever reasons, because of the even much more better results or whatever, even if let's say we go up by 1000 or 2000 points from here, even then the premiums are really good. So let's say 4000 points or 4500 points is done for this particular week, then I won't be expecting market to trend another 2000 points. So that's the reason I said tomorrow towards the end you can actually look for selling call options as well, tomorrow end or maybe second half or something. So the premiums are really good. The idea is आप buy on dips ही कर सकते हो, बहुत अच्छे प्रीमियम्स है अभी भी। टुडे अगेन आई एम नॉट डिस्कसिंग कि फ्लैट खुलता है या गैप अप खुलता है या गैप डाउन खुलता है, बिकॉज मोर और लेस द लुकिंग एट द क्लोजिंग इट लुक्स लाइक more like a gap up opening. So let's see, plus then there is an event tomorrow, so I really don't want to comment because events के टाइम पे ना you can't predict, ये नॉर्मल डेज में नहीं आता है। जैसे कि आज हम खुले ही थे 1990 पॉइंट्स गैप अप के साथ, तो दिस यू कांट प्रेडिक्ट। ऑफ कोर्स वी वर एक्सपेक्टिंग अ गैप अप ओपनिंग, बट 2000 पॉइंट गैप अप ये हम कैलकुलेशन में हमारी आती नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट नॉर्मल डेज। तो कल देखते हैं कि कल कहाँ खुलती है और कैसे फिर होती है। आइडिया वही रहेगी, जब भी डिप्स मिलेगी मान लीजिएगा ये 5600 5500 यहाँ पर आती है, एंड इफ some reversal happens here then you can take an entry.
स्पेशली डब्ल्यूज बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर बाय ऑन डिप्स, तो फिर आप डब्ल्यू को स्पॉट करना सीखिएगा। नाउ लेट्स गो टू फिन निफ्टी, क्योंकि फिन निफ्टी की कल एक्सपायरी है, आप फिन निफ्टी में डेफिनेटली स्ट्रैंगल प्ले कर सकते हो कल अगेन, बिकॉज ये देखिए ऑलरेडी 1000 पॉइंट की अपमूव आ चुकी है, और कल एक और मान लीजिएगा कि कल ऑलमोस्ट अनदर 900 to 1000 पॉइंट भी आती है, फिर भी आपके लिए प्रीमियम्स अच्छी रहेगी, तो दूर दूर में आपको फिर भी अच्छे प्रीमियम्स मिलेंगे। आई एम एक्सपेक्टिंग फिन निफ्टी में ये ऑप्शंस, मोस्ट लाइकली ये भी, बट अगर क्योंकि प्रीमियम्स बहुत अच्छी है और बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं करना चाहिए क्योंकि कल बहुत वॉलेटाइल रहने वाला है, तो अब थोड़ा प्रेफर कीजिएगा दूर में ही रहने के लिए। तो 22,050, 22,100 ये वाले ऑप्शंस आप देख सकते हो पुट की तरफ में, और ऐसा नहीं कि ओपनिंग होते ही यहाँ पर खुल गया तो आपने इधर मार लिया, क्योंकि क्या होगा जैसे कि आज भी गैप अप होते ही अगर जिसने भी मारा होगा तो उसको पुट ऑप्शंस जिसने भी सेल किया उसको ये पूरा स्पाइक झेलना पड़ा होगा, तो उस हिसाब से थोड़ा सा वेट कीजिएगा। डायरेक्शनल प्लेयर्स भी अगर आप लोगों को थोड़ा सा पुल बैक वगैरह मिलता है वहां से फिर यू टर्न लेता है तब आप लॉन्ग जाने का सोचिएगा। डायरेक्टली गोइंग लॉन्ग थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बिकॉज याद रखिएगा कल विक्स भी विल ऑल्सो प्ले आउट इट्स रोल। ये देखिएगा विक्स का ये आज का फॉल है, ठीक है, ये आज का विक्स का फॉल है, हालांकि अभी भी इतना ड्रामेटिक नहीं है, मैं आपको डेली में दिखाना चाहती हूँ। हाँ, ये अभी भी इतना ड्रामेटिक नहीं है, बिकॉज अगर आज आप देखोगे आज का जो फॉल है वो रफली 15% ही है, बट कल की जो विक्स में कूल ऑफ होगी वो थोड़ी सी ज्यादा होने की चांसेस है यूजुअली, क्योंकि इवेंट के होने के बाद विक्स में फॉल देखते हैं हम, और मैंने ये चीज कल बिल्कुल भी बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन की थी व्हेन वी वर डिस्कसिंग, जब हमने ये पर्टिकुलर चीज डिस्कस किया था, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ऑन द डे ऑफ इलेक्शन। सी इन वन ऑफ माय वीडियोस आई रिमेंबर आई हैव मेंशन दैट मार्केट्स आर अ डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म, सो इट यूजुअली लाइक्स टू डिस्काउंट द न्यूज बिफोर हैंड। तो मे बी कल न्यूज आएगी कि जबकि कल एक्चुअल काउंटिंग के बाद प्रॉपरली वी विल गेट टू नो द फिगर्स, बट क्योंकि एग्जिट पोल्स और वो सब रीजंस की वजह से मार्केट ने ऑलरेडी फैक्टर इन कर लिया है एनडीए का विन, और उस वजह से आज ही हमने इतनी बड़ी गैप अप ओपनिंग देखी है। तो ये रीजन से हमने बताया था कि बी सरप्राइज्ड इफ मार्केट मेक्स अ फ्रेश हाई बिफोर द इलेक्शंस एज वेल। तो ये है, और एक देयर इज वन इंटरेस्टिंग चार्ट दैट आई वुड वांट टू टेक योर अटेंशन टू। तो दिस वाज द गैप अप दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, ये वाला जो आज इतनी बड़ी गैप अप हुई, उसके बाद जितनी बड़ी गैप अप हुई उसके बाद मार्केट ने वो लेवल को सस्टेन किया, विच इज अ वेरी गुड पार्ट, विच मीन्स द बुल्स आर स्टिल इन पावर। और अभी आप देखोगे बहुत लोगों को फोमो हुआ है, राइट, क्योंकि उन्होंने ये सारा रैली ही मिस कर दिया। अब क्या होगा ना, जब भी डिप आएगा ना दे आर गोइंग टू बाय, इसके लिए दैट्स द रीजन आई सेड व्हेनेवर देयर विल बी अ डिप जस्ट गो लॉन्ग। अभी भी क्योंकि अभी भी बहुत बाकी है ऊपर आने के लिए। 51,000 पे if you go long, then obviously the risk reward will be horrible, so you'll have to wait patiently for markets to come down a bit and then try to spot it near important supports and then go long. Now if you don't know how to spot supports and resistance, so you can go and check the video. One important point that I would want to draw your attention, now look at this particular candle, this is 3rd June, ठीक है, 3rd June यहाँ पर हमने गैप अप देखा है इतना बड़ा, ठीक है, 1900 पॉइंट्स का गैप अप देखा था, और ये क्या है, हम एग्जिट पोल्स के हिसाब से ये रीजन से ये गैप अप हुआ था। नाउ लेट मी टेक यू टू दिस डे। 3 दिसंबर को 3 स्टेट इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए थे जहां पर बीजेपी विन हुई थी, और मार्केट ने इसी टाइम पे अनुमान लगाया था दैट एनडीए गवर्नमेंट का कमबैक ऑन द 3rd टर्म विल ऑल्सो बी देयर, एंड दैट्स द रीजन वी हैव सीन यहाँ पर एक मेगा गैप अप हमने यहाँ पर भी देखा था, इफ यू रिमेंबर दिस। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 850 पॉइंट्स का गैप अप हुआ था, और उसके बाद मार्केट उस दिन ट्रेंडिंग वन साइडेड ट्रेंडिंग थी, ऐसे आज की जैसे वॉलेटाइल नहीं थी, आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रेंडिंग वन साइडेड थी 770 पॉइंट्स के आसपास। और उसके बाद अगर आप देखोगे अगले दिन गैप अप खुलता है और मार्केट एक डोजी बनाता है। तो याद रखिएगा दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। और वन मोर इन्फॉर्मेशन, उसके बाद देखिएगा फॉर सम टाइम मार्केट रिमेन्स ऊपर उसके, तो ये वाला टाइम है, इसके लिए मैंने बोला अगर कोई मीनिंगफुल डिप मिलती है तभी आप लॉन्ग जाने के लिए सोचिएगा। आई एम नॉट सेइंग कि ये सेम ही रिपीट होगा, बट आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट टू रिमेन थोड़ा सा ऊपरी लेवल पे फॉर दिस मंथ एंड एटलीस्ट जुलाई का फर्स्ट हाफ में भी, बट फॉर श्योर इन दिस मंथ आई एम एक्सपेक्टिंग वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अ बुलिश मंथ इन द मंथ ऑफ जून। तो लेट्स सी क्या होता है, बट ये खाली हिस्टोरिकली मैंने आपको दिखाया क्या हुआ था। इफ यू हैव लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो प्लीज डू हिट द लाइक बटन, एंड आपने हमारे कोई प्रीवियस एनालिसिस के थ्रू आपको कुछ बेनिफिट हुआ है, लेट अस नो ऑन द कमेंट सेक्शन। सी यू टुमारो, हैव अ सेफ एंड अ ग्रेट ट्रेडिंग डे अहेड, बाय बाय।